Hello everyone. Today we are going to start with our GS1 Society module. Society as a subject, if I have to tell you, it is a bit diverse subject. But don't worry, we have our guiding light with us, and that is nothing but the syllabus given by the UPSC along with the previous year questions. Previous year questions we are going to use to map various sub-themes, and do not worry about all this. We have covered all of this in the content itself. Now, before starting, let me tell you about the aim of this course. Aim is very simple to provide you crisp content along with proper understanding because I think ultimately that is what matters. Because crisp content is what you will be able to reproduce in your exam, right? Now, my suggestion to you is now या तो आप इन नोट्स का क्या करिए प्रिंट निकलवा लीजिए यू प्रिंट दीज नोट्स या फिर जस्ट टेक पेन एंड पेपर विद यू एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली you should pause the video in between and try to brainstorm along with me. Why? Because this is the most important exercise. You should learn by the end of this course to think. Your brain should learn how to think. क्योंकि questions जो है मेंस में it's not necessary कि वो verbatim repeat हो जाएंगे, right? There can be questions which will come from where interlinkages of various themes. तो उसके लिए you need to practice. And how will you practice? Again, my one more suggestion to you is जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है रात को हाफ एन आवर बैठ जाइए बस एंड ट्राई द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक even if you do not write the whole answers by your own self at least try to brainstorm the main points कि अच्छा मैं सब headings ये बनाऊंगा या बनाऊंगी right and last suggestion at the end of this module just give a full length test and you will be done with this subject once and for all. चलिए तो अब मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि सिलेबस के अंदर जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं. दिस इज द सिलेबस ऑफ सोसाइटी जो हमारे यूपीएससी ने दिया है. द सिलेबस सेज salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, very important, their problems and their remedies. Then you have effects of globalization, again very important, on Indian society, social empowerment. Then three keywords are there: communalism, regionalism, and secularism. This is the society syllabus. And today, the topic that we are going to do is salient features of Indian society, diversity of India. Now, let me take you to how many questions are being asked in the previous year from this one topic. There are total of around 22 questions that are being asked. इसके अंदर भी सब थीम्स क्या क्या पूछी हुई हैं. ट्राइबल्स के बारे में पूछा हुआ है, कास्ट के बारे में पूछा हुआ है. कास्ट के बारे में क्यों पूछा हुआ है? अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. आपको नहीं लगता जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके अंदर एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई इंडियन सोसाइटी का, तो जो कास्ट सिस्टम है. अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट येस इट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी. देन यू हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू अगेन सोसाइटी कल्चर, किस तरीके से चेंज हो रहा है. यू हैव मैरिज फैमिली क्वेश्चंस एंड questions related to diversity of India. This question I have included in the content itself because I felt this question, मैं difficult नहीं बोलूंगी, but yes, it is kind of an question, analytical question where you will have to um, interlink the two themes. So I have given you content related to this question. Rest three questions are just related to diversity, cultural diversity a question here. Then you have linguistic diversity and again cultural diversity. This we will be able to solve once we go through the notes. Okay, let's dive into the main content of this course. Now, let's start with diversity. What is the meaning of diversity? These are the three words. Remember these three words. Diversity का मतलब क्या है? Coexistence of multiple identities within a shared political space. अब देखिए जरा इंडिया के एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ. तो जो इंडिया है, sorry for the diagram. Yeah, so India hai. Now this is a shared political space, right? This is a shared political space. अब हमको पता है इंडिया के अंदर इतनी सारी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं जो को एग्जिस्ट कर रही हैं. को एग्जिस्ट मतलब जो साथ में रह रही हैं. देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज.
अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? किस तरह की आइडेंटिटी? अब एक इंसान की बहुत आइडेंटिटीज हो सकती हैं। वो इंसान किस रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, वो इंसान कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कौन सा कल्चर फॉलो करता है। कल्चर में क्या आ जाता है? कल्चर का मतलब क्या है? किस टाइप का खाना खा रहा है, किस टाइप के कपड़े पहन रहा है, क्या उस सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं उस सोसाइटी की, राइट? क्या कोई एथनिक आइडेंटिटी है उसकी, जैसे कि ट्राइबल्स की होती है। तो कुछ भी हो सकता है ना आइडेंटिटी। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये सब आइडेंटिटीज का एक ही शेयर्ड पॉलिटिकल स्पेस में साथ में रहना, साथ में को एग्जिस्ट करना, इसको हम क्या बोल देंगे? डाइवर्सिटी। Very simple. This was the meaning of diversity. I will read out to you once the meaning of diversity again. Diversity refers to coexistence of multiple cultural, social, linguistic, religious, and ethnic identities within a shared political space. I hope you get it. Now, let us move फर्दर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब डाइवर्सिटी बहुत तरह की होती है। मैंने भी आपको बताया था अलग अलग टाइप की आइडेंटिटीज होती हैं। तो डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। किस तरह की डाइवर्सिटी की बात करें आप? रिलीजियस डाइवर्सिटी है, भाषाओं की में डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, कास्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट है, नॉट जस्ट कास्ट, सब कास्ट भी हैं। देन यू हैव एथनिक आइडेंटिटीज, देन यू हैव कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, रिलीजियस डाइवर्सिटी, एवरीवन नोज इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, ठीक है, सब लोग साथ में रह रहे हैं। सो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, सो अब ये सब क्या है? ये सब रिलीजन्स साथ में रह रहे हैं, ठीक है। नाउ दीज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स। दिस वन इज पिक्ड फ्रॉम मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में जब भक्ति और सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तब दे प्रमोटेड लव, दे प्रमोटेड ब्रदरहुड, दे आर्ग्यूड टू स्टॉप रिचुअलिज्म एंड फोकस ऑन लव एंड ब्रदरहुड, कि हम सब एक साथ रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। यू कैन यूज दिस एज एन आइडिया, पॉजिटिव आइडिया इन इंडियाज रिलीजियस डाइवर्सिटी। देन यू वर हैविंग प्लूरल सेक्ट्स लाइक शैव, वैष्णवा ट्रेडिशंस एक्सेट्रा, ठीक है। Now, again, very important value addition point for you is this. Whenever there's a question related to religious diversity, or anyways, you have to write the point of religious diversity, just add this example of Ganga Jamuni Tehzeeb in Awadh region. तहजीब का मतलब क्या है? मैं समझाती हूँ क्या है। तहजीब का मतलब है कल्चर, कल्चर के लिए यूज किया गया है ये वर्ड यहाँ पर। गंगा जमुनी, वैसे ये यूज किया गया है कोई भी दो रिलीजन्स जो हैं वो एक साथ जब रह रहे हैं तो कॉम्पोजिट कल्चर के लिए यूज किया गया है ये वर्ड गंगा जमुनी तहजीब। जमुनी इज नथिंग बट यमुना, यमुना को बोलते हैं जमुना, इट्स जस्ट अनदर नेम फॉर यमुना। नाउ वैसे तो हम ये किसी भी मोस्टली जो है वो किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए हम जो यूज कर लेते हैं, लेकिन हम इसको मोस्टली यूज करते हैं हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर के लिए। ऑलराइट, वो साथ में पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं अवध रीजन में। सो दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ इंडियाज रिलीजियस डाइवर्सिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं? नाउ GN Dave conducted People's Linguistic Survey of India. I think it was in 2010, right? So उन्होंने बोला कि देर आर 780 मेजर लिविंग लैंग्वेजेस, 780 भाषाएं हैं इंडिया में, और 66 तरह की डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी हैं। इसके साथ साथ और आपको क्या पता है कि हमारा जो 8 शेड्यूल है उसके अंदर 22 भाषाएं इंक्लूडेड हैं, 22 scheduled languages. Apart from that, what do we have? These are the 4 major group of languages. जैसे कि लैंग्वेज फैमिली बोलते हैं इनको हम, ऑस्ट्रिक फैमिली। ऑस्ट्रिक फैमिली के अंदर कैसी कौन सी भाषाएं आएंगी आपकी? जैसे कि संथली हो गई है, उनकी भाषाएं आ सकती हैं। अब उसके बाद द्रविडियन, द्रविडियन तो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, जो सदर्न लैंग्वेजेस हैं आपकी, तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, वो सब द्रविडियन फैमिली में आ जाएंगी। फिर आपकी इंडो आर्यन फैमिली होती है, अच्छा इंडो यूरोपियन फैमिली होती है। इसके अंदर आपकी हिंदी, पंजाबी, ये सब भाषाएं आएंगी। सिनो तिब्बतन, जो तिब्बत के रीजन की तरफ से जो भाषाएं हैं
मणिपुरी हो गई है, बोडो हो गई है, या फिर नागास की जो लैंग्वेज है। तो ये सब देखिए आप कितनी डाइवर्स भाषाएं हैं, फैमिलीज हैं, ये 4 फैमिली, इनको लैंग्वेज फैमिलीज बोलते हैं। तो हमने क्या देखा देखो लैंग्वेज में, हमने देखा कि एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर 780 भाषाएं अभी इंडिया में मौजूद हैं, लिविंग लैंग्वेजेस हैं, ऐसा बताया गया। उसके बाद हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में 22 भाषाओं का जिक्र है। उसके बाद हमने देखा कि 4 टाइप की फैमिलीज भी होती हैं जिसके अंदर हम अलग अलग भाषाओं को कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर वेरी गुड वैल्यू एडिशन पॉइंट फॉर यू कि इंडियन जो डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, एक स्कॉलर है ई अन्नामलाई, उन्होंने बोला कि इंडिया फॉलोज अ मॉडल ऑफ मैनेज्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या है मतलब इसका, कि इंडिया में मैनेज्ड मल्टीलिंगुअलिज्म है, मतलब कि मल्टीपल भाषाएं हैं, मल्टीपल लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, कोई भी सिंगल नेशनल लैंग्वेज जो है वो डोमिनेट नहीं कर रही है। यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल भाषाएं साथ में को एग्जिस्ट कर रही हैं। और कैसे कर पा रही है वो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एज वी हैव सीन देयर ऑल्सो। प्लस इफ यू वांट टू राइट देन लिंग्विस्टिक स्टेट्स का ओरिजिन आपका जो हुआ था वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद से हुआ था। पहली स्टेट जो आपकी थी वो आंध्र प्रदेश थी। तो दिस वाज रिलेटेड टू अ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी पढ़ लिया, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पढ़ लिया। अगर किसी को लग रहा है कि उनकी रिकॉलिंग पावर थोड़ी वीक है तो फिर अब यहीं पॉज करो वीडियो को। अब 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, इनके बारे में रिकॉल करने की कोशिश करो। कितना टाइम लग जाएगा, ज्यादा ज्यादा 2 मिनट लग जाएंगी, एंड देन अगेन स्टार्ट द वीडियो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट विच इज कास्ट डाइवर्सिटी। वी ऑल नो, अपने आसपास सबको आज रियलिटी पता है कि देर आर सो मेनी कास्ट्स, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेट बट यस देर आर सो मेनी कास्ट। जाति सिस्टम बोलते हैं इसको हम कभी कभी। जाति कभी कभी क्यों बोला मैंने, बिकॉज टेक्निकली यू नो देयर वाज जातीज इन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, सब जातीज भी हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर एंडोगेमी। एंडोगेमी क्या होता है? एंडोगेमी इज बेसिकली अ मैरिज रूल। मैरिज का ये रूल है जिसके अंदर यू आर नॉट अलाउड टू मैरी आउटसाइड योर ग्रुप, अपने ग्रुप के बाहर। अब वो अगर हम बात करेंगे कास्ट एंडोगेमी की, तो कास्ट ग्रुप हो गया है, कास्ट को एक ग्रुप मान लेते हैं। तो कास्ट एंडोगेमी का मतलब है कि अपनी कास्ट के बाहर आप शादी नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, अपनी कास्ट के लोगों से ही शादी करनी है। इसको बोलेंगे हम एंडोगेमी। फिर है आपका हायरार्की। सबको पता है कास्ट सिस्टम के अंदर अनफॉर्चुनेटली हायरार्कियल ग्रुप्स हैं। कोई कास्ट ऊपर है हायरार्की में, कुछ कास्ट नीचे हैं हायरार्की में, जैसे कि SC ST नीचे हैं हायरार्की में, राइट। तो हायरार्की बेस्ड है ये चीज। BR अम्बेडकर जी ने बोला कि कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। कास्ट को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ये एक क्लोज्ड सिस्टम की तरह बन चुका है। लेकिन फिर हमने देखा कि हाँ, कभी कभी अब रिजर्वेशन आए, मंडल कमीशन आया, तो उन्होंने रीशेप किया है सोशल मोबिलिटी को। मंडल कमीशन ने रीशेप किया है सोशल मोबिलिटी को। बाकी डू नॉट वरी अबाउट दिस। कास्ट का जो टॉपिक है वो हमको इन डिटेल पढ़ना है आफ्टर अ फ्यू मोर टॉपिक्स, ठीक है। तो डोंट वरी, इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट द फोर्थ पॉइंट विच इज एथनिक एंड ट्राइबल डाइवर्सिटी, इसको भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। ओके, एथनिक एंड ट्राइबल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? हमें पता है कि आदिवासी से नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ट्राइब रह रही हैं जिनके खुद के डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, उनके कल्चर है। दे ऑलवेज डिमांड कल्चरल ऑटोनॉमी। इतना कि हमको पता है 6th शेड्यूल भी है। 6th शेड्यूल के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट्स हैं बताओ? यहाँ पर अपना रिवाइज करो GS2। कौन सी स्टेट्स है बच्चा? इसके अंदर है 6th शेड्यूल के अंदर कौन सी लैंग्वेज, सॉरी कौन सी स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। दीज आर द 6th शेड्यूल स्टेट्स। तो इनको अलग से हमने आइडेंटिटी दी है ताकि इनकी जो ऑटोनॉमी है वो प्रिजर्व रह सके। जो शेड्यूल कास्ट हैं, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो दे मेक अप टू 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। नेक्स्ट इज योर कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? क्या हमको पता है कि इंडिया में इतना सब कुछ है, इतने डाइवर्स तरीके का खाना है, इतने डाइवर्स तरीके की ड्रेसेस हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। हिस्टोरिकली भी हमने देखा, मौर्यन गुप्ता का जो फ्यूजन हुआ, मुगल कल्चर का फ्यूजन हुआ। फिर कथक में हमने देखा कि कथक जो था इट वॉज इवॉल्व ड्यूरिंग द मुगल पैटर्नेज। सो ऑल दिस
shows the cultural beauty of India. Next you have regional diversity. ये सब जो है ये हमको रीजनल डाइवर्सिटी दिखती है ना. क्लाइमेट अलग होता है, ज्योग्राफी अलग होता है, ये सब कुछ चीजें अफेक्ट करती है. वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का ज्योग्राफी क्या है, उस हिसाब से वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होता है. तो दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड. रीजनल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी. देन यू हैव इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. अब देखिए पूरे भारत में क्या हर जगह ऐसी है जहाँ पे क्या आपको लगता है कि हर किसी की जो पर कैपिटा इनकम है वो सेम है? नो, बिल्कुल दिस इज नॉट द रियलिटी. द हार्श ट्रूथ इज दैट देयर आर certain rich states and there are certain poor states. Rich states, for example, Punjab. Poor states, for example, Bihar is there, right? So, unfortunately, apart from this kind of diversity, economic diversity in terms of like states, there is also rural-urban divide. है ना, रूरल एरिया अर्बन एरिया में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है. इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू वन ऑक्सफैम रिपोर्ट. ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या है? इनइक्वालिटी पे रिपोर्ट है. जो टॉप 1% है, इट होल्ड्स 40% ऑफ द वेल्थ. सो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है. नाउ इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस इज देयर. अच्छा, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के ऊपर एक केस स्टडी है फिर आपकी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड ओनली फ्यू स्टेट्स, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा. वहां के जो फार्मर्स थे दे बिकेम प्रॉस्परस बट नॉट दी रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. इसकी वजह से यहाँ पर इस वजह से भी जो है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो गई. नेक्स्ट यू हैव पॉलिटिकल डाइवर्सिटी. इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है. मल्टी पार्टी सिस्टम है. इंडिया के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स है. इंडिया के अंदर रीजनल पार्टीज है. आपने साउथ में देखी होंगी, तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ था अभी, आपने ये सब देखा होगा वहां पर, राइट? रिलेट कर सकते हैं आप उस सब चीज से. Which is a very good thing because it enables competitive politics. We don't want a one party system, otherwise the democracy will be at stake, right? So we want broader and broader participation in governance. Political diversity में और क्या है? Reservation भी है, हमको पता है. SC ST ऐसे reservation देते हैं ना वुमेन को भी. अब तो चलिए आपका जो नारी शक्ति अधिनियम बिल है वो भी पास हो गया है, अब तो सेंटर में भी आएंगी वुमेन. तो ये कितनी अच्छी चीज है कि हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी जो है वो डाइवर्सिटी हो. आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन सब, हाँ, विच इज ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है इफ वी टेक इट इन टर्म्स ऑफ कि लोग जो हैं वो अपनी कास्ट के हिसाब से वोट करते हैं. बट इफ वी टेक इट इन टर्म्स ऑफ कि अगर SC ST वाली जो रिजर्वेशन है दैट इज अ पॉजिटिव साइड. एंड अगर कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी की बेसिस पे अगर वो वोट कर रहे हैं दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ योर पॉलिटिक्स हियर. So these were the few dimensions. फिर से एक बार इनको पढ़ो. क्या पढ़ा? रिलीजियस डायमेंशन. दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या क्या लिखना है. ये एग्जाम्पल जरूर लिखना है. दिस इज अ की एग्जाम्पल. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के में आना चाहिए आपके दिमाग में. ये सर्वे लिखना है आपको. एक स्कॉलर का नाम आपको डालना है. कास्ट डाइवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए कि हम आगे पढ़ेंगे, ये तो आप लिख देंगे मुझे पता है. इतना डिटेल में हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं. देन एथनिक डाइवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है. कल्चरल डाइवर्सिटी अलग, फूड है, ड्रेसेस हैं, एक्सेट्रा. रीजनल डाइवर्सिटी है. इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, उसका केस स्टडी में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन डालना है. पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम है बिकॉज वी वांट कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एंड गुड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस बिकॉज दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी. ठीक है. अब देखिए ये सब डायमेंशंस हैं डाइवर्सिटी की. डजंट मीन ये सब परफेक्ट है. इनके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो हम नीचे जाके यहाँ पर पढ़ेंगे. चैलेंजेस उससे पहले लेकिन हमें कुछ और चीजें पढ़नी है. फीचर्स ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी. अब देखिए हमने ऊपर जो डायमेंशंस पढ़े हैं दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी. अलॉन्ग विद दैट व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी? की पॉइंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हम लोग कितने ही डाइवर्स हैं लेकिन हम लोग यूनाइटेड है, राइट? वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट ईद, वी सेलिब्रेट क्रिसमस, गुरु नानक जयंती एज पब्लिक हॉलीडेज अक्रॉस इंडिया. दिस इज what is showing our unity in diversity. Pluralism, cultural syncretism. Now these 2 points here, mark these. बाकी तो सब सिमिलर है, रेपिटेटिव है ऊपर वाले पॉइंट से. These are the very important points. कि जो इंडियन सोसाइटी है उसका डायनेमिक नेचर है, मतलब वो चेंज कर रही है. जो मॉडर्न फोर्सेस हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये सब चेंज कर रही है. डाइवर्सिटी इन इटसेल्फ इज चेंजिंग. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सारी
जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है हमारी कल्चर की वो चली गई हैं, सोसाइटी की वो वैनिश हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज कॉन्टिन्यूटी विद चेंज, कि हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं दे आर अगेन को एग्जिस्टिंग विद मॉडर्न वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी वजह से तो सोचिए आप, डाइवर्सिटी और भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। पहले ही हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी, लेकिन अब उन ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ साथ वी हैव मॉडर्न वैल्यूज, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस विद अस, बिकॉज डायनेमिक नेचर है और कंटिन्यूटी है विद चेंज। चेंज तो है बिकॉज ऑफ डायनेमिक नेचर, लेकिन कंटिन्यूटी भी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी। नाउ next is, why is diversity so important? Yes, it is again important, very important, because cultural richness, जो country जितनी ज्यादा diverse है, India is a culturally rich country। इससे क्या होता है हमारा tourism, tourism में हम यही तो promote करते हैं हमेशा, right? Next, now the next thing is global soft power. How is India using diversity as a global soft power? For example, let's say we have cultural exchanges with so many countries. We use Buddhism also as a diplomatic tool, especially with the South Asian countries. With Tibet, we have relations. With Tibet, we also maintain relations in terms of Buddhism, right? Now, apart from that, this is our democratic strength. We know अगर हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स, जैसे हमने देखा पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी थी या मल्टी पॉलिटिकल सिस्टम, तो दैट इज ऑल्सो इन अ वे ट्राइंग टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सोशल इनोवेशन, देन फेडरल स्टेबिलिटी इज देयर बिकॉज ऑफ ऑल दिस डाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट, अब जो हम बोल रहे हैं बार बार, जो हम प्राइड लेते हैं दैट इन इंडिया देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स जिनकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। विल लुक एट दीज फैक्टर्स। स्टार्ट करिए मॉडर्न इंडिया से। जब फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था तब सबने मिलकर जो है देश को आजादी दिलवाई थी। शेयर्ड नेशनल कॉन्शियसनेस, वो आज तक हम जब स्टोरी सुनते हैं, हम जब पढ़ते हैं, अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, देन डेफिनेटली वी डेवलप शेयर्ड नेशनल कॉन्शियसनेस। तो फ्रीडम मूवमेंट की ही लेगेसी है आज भी कि हम लोग क्या हैं, यूनाइटेड हैं डिस्पाइट बीइंग सच अ डाइवर्स कंट्री। नाउ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, दैट मीन्स ब्रदरहुड, ये सब हमको जो है दीज मोटिवेट अस टू रिमेन यूनाइटेड। देन वी हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट इज कॉमन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि ऐसा नहीं है कि हिंदू हिंदू के लिए ही वोट कर सकता है या क्रिश्चियन क्रिश्चियन के लिए ही वोट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव कॉमन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। So these are the points, again, these are the points that we are reading related to the factors promoting unity in India. Then we have infrastructure connectivity. सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाएंगे, एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में जान पाएंगे, एक दूसरे के कल्चर्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। समझिए अगर दो रीजन्स हैं और दे आर इकोनॉमिकली ऑल्सो इंटीग्रेटेड, हाउ? सपोज करते हैं यहाँ पर किसी रॉ मटेरियल यहाँ से आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर किसी फैक्ट्री में बनता है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर कुछ होगा देन दिस रीजन विल बी अफेक्टेड, राइट? द इकोनॉमिकली विल इट विल बी अफेक्टेड इकोनॉमिकली ऑल्सो। सो ये सब चीजों की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की वजह से, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से, वी हैव जीएसटी, वी हैव कॉमन मार्केट, लेबर मोबिलिटी है, माइग्रेशन हो पा रहा है, इन सब की वजह से भी हमारे अंदर जो है एक यूनिटी की भावना है। देन यू हैव मीडिया एंड कल्चरल एक्सचेंज वाया सिनेमा, फेस्टिवल्स, नेशनल डिस्कोर्स। आप देखिए एक नॉर्थ इंडिया का जो पर्सन है उसको साउथ इंडियन कल्चर के बारे में आजकल इतना ज्यादा पता चल पा रहा है, उनकी वेडिंग्स किस तरीके से होती है। वाई? बिकॉज ऑफ सिनेमा, वो मूवीज में देखते हैं, या आप देखिए आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है तो रील्स में पता चलता है इन सब चीजों से। तो मीडिया एंड कल्चरल एक्सचेंज इज ऑल्सो हैपनिंग। देन यू हैव सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस, मतलब फ्यूजन, भक्ति, सूफी। देन अगेन हमने ऊपर देखा था गंगा जमुनी कल्चर। देन वी हैव फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी। ऐसा क्यों है? देखिए, हमने हमारा यूनिटी तो है, यस,
We are an indestructible union with destructible states. We are indestructible. लेकिन रीजनल ऑटोनॉमी तो है फिर भी, ताकि जो लोकल डिमांड्स हैं, लोकल नेसेसिटीज हैं, वो भी प्रॉपरली एड्रेस हो पाए, बिकॉज हमको पता है कि हर रीजन की जो नीड्स है दे आर अ बिट डिफरेंट. सो दैट इज ऑल्सो इन अ वे trying to promote unity. Then we have economic integration, migration and urbanization, social and cultural intermixing. आपने देखा होगा जो urban metropolitan cities होती हैं, वहां पर you usually do not know कि आपके जो साथ में रह रहा है, साथ में इन द सेंस कि आप सोचे कि आपके जो नेक्स्ट फ्लैट में रह रहा है, फ्लैट कल्चर में, कि उनका रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, सोशल एंड कल्चरल इंटरमिक्सिंग. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर प्रमोटिंग यूनिटी इन India. We started right from the freedom movement and we came to today's modern day factors. All right. Now, there are definitely, it is not an ideal world. There are definitely challenges that are there for the unity. There are challenges of diversity. Is there? What are the challenges again? Religion की वजह से कम्युनलिज्म जो है, कभी कभी दो रिलीजन्स के बीच में हीन भावना पैदा हो जाती है, तो कम्युनलिज्म इज देयर, कास्टिज्म इज देयर. कास्टिज्म इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज टू डाइवर्सिटी because it is such a negative concept. Then you have regionalism, linguistic conflicts are there. एग्जाम्पल आप खुद बता दीजिए लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स के. एंटी हिंदी वेव जो चलती है सदर्न स्टेट्स में आपकी, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब से थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आया है. ऑल्सो यू हैव मराठा लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स चलती है महाराष्ट्र में, आपने देखा होगा. सो दीज आर द थिंग्स. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती है. These are challenges. Next, you have constitutional framework. Achha, I want to tell you one thing. Whenever there's a question of society, you always try to include some articles, some constitutional angles. देखिए, आप प्रीलिम्स में इतनी ज्यादा पॉलिटी पढ़ते हैं, आप इतने आर्टिकल्स रखते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे सोसाइटी में ये जो आर्टिकल्स है ये बहुत जगह यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर वी कैन सी आर्टिकल 14, इक्वालिटी की, हर कोई इक्वल है. फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, किस लैंग्वेज को आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं. यू आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ. देन यू हैव आर्टिकल 15, डजेंट मैटर व्हाट योर रेस इज. रेस तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है. खैर, डजेंट मैटर व्हाट योर रिलीजन इज, व्हाट योर जेंडर इज, लाइक सेक्स इज, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ. You cannot be discriminated based on these things. Also add here Article 25 to 28, that is freedom of religion. आपकी मर्जी है, आपको कोई भी धर्म प्रोपगेट करना है, प्रोफेस करना है, अपनाना है, आप कुछ भी अपना सकते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया. ये दिखाता है ना डाइवर्सिटी. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही वैल्यूज हैं जो कि प्रमोट कर रही हैं डाइवर्सिटी को. These are the articles. Linguistic rights के लिए we have 350B article, right? Federalism is there. Now a good conclusion that is going to end this topic of diversity. India's diversity is not fragmentation. India की diversity की वजह से हम टूटे नहीं हुए हैं. Fragmentation का मतलब क्या है? टूटे, बिखरे नहीं हुए हैं हम बल्कि क्या है? But there is a structured plurality. बल्कि हम प्लूरल हैं, हम लोग डाइवर्स हैं. एंड हाउ इज दिस डाइवर्सिटी बीइंग मैनेज्ड? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी. सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सब किसी को, हर किसी को आर्टिकल 15 को फॉलो करना है, हर किसी को फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू मेंटेन अ स्ट्रक्चर्ड प्लूरैलिटी. मेक नाउ इसकी वजह से क्या हो रहा है? मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. यस, वी आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज जितने ज्यादा कल्चर्स हैं, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. बट अगेन स्टिल वी आर रेजिलियंट मल्टीकल्चरल सोसाइटी इन द वर्ल्ड. Understand? So this was a very holistic conclusion. So we have read about diversity of India. मीनिंग पढ़ लिया, उसके बहुत सारे डायमेंशंस पढ़ा कि किस तरीके से यूनाइटेड हैं हम लोग, डायनेमिक भी हैं लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं. उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, फैक्टर्स पढ़े जिसकी वजह से यूनिटी है, challenges भी हैं, कुछ constitutional values हैं which are promoting the diversity, and then conclusion. Now this is one previous year question that I am going to read out to you. This question demands interlinkage between India's cultural diversity and socio-economic marginalities. The question says, critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversity and socio-economic marginalities. Question क्या पूछना चाह रहा है, अब इसको समझने की कोशिश करिए. Question पूछना चाह रहा है कि क्या ऐसा कोई correlation है कि
कल्चरल डाइवर्सिटी कि एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करने वाले इंसान जो हैं उनकी शायद सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर कल्चर, क्या इसमें कोई कोरिलेशन है? तो हमको इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। हमको दो जो है सब पार्ट्स करने हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट कि यस कोरिलेशन है, सेकंड पार्ट कि नहीं कोई कोरिलेशन नहीं है या फिर वीक कोरिलेशन है। ऑलवेज ट्राई टू गिव मेनी व्यू पॉइंट्स इन वन क्वेश्चन, और इसके अंदर तो स्पेसिफिकली आपसे पूछा ही गया है कि दैट यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यस कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कास्ट बेस्ड डेप्रीवेशन की, आप देखेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट है, आप देखेंगे अपने आसपास जो मैनुअल लेबर कर रहे होते हैं या फिर लैंडलेस जो लेबरर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके शेड्यूल कास्ट को होते हैं, या फिर उल्टा ही बोल सकते हैं आप कि ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट आपको दिखेंगे दे आर लैंडलेस, जिसकी वजह से दे हैव टू डू मैनुअल लेबर। ठीक है, इनफैक्ट मैनुअल स्कैवेंजर्स जो थे, एक स्टडी भी आई थी कि दलित्स जो है वहां पर ज्यादातर जो है उनके अंदर दलित्स हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज द कोरिलेशन पॉइंट। देन यू हैव ट्राइबल मार्जिनलिटी की, जो ट्राइब्स हैं वो मार्जिनल होती हैं, वहाँ की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती है बिकॉज वो जोग्राफिकली हमसे आइसोलेटेड होती हैं। वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, स्कूल्स नहीं होते हैं, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है आदिवासी बेल्ट्स में, ऐसा देखा गया है। उसके बाद साचर कमेटी है 2005 में आई थी, 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली थी। इन्होंने बताया कि जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटी है, उनमें सोशियो इकोनॉमिक गैप्स देखने को मिले हैं। दैट मीन्स उनके जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अच्छा व्हेनेवर आई से दिस टू यू सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यू माइट अंडरस्टैंड, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर द इंटरलिंकेज ऑफ दीज इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन हो गई है आपकी, हेल्थ हो गई है आपकी, सैनिटेशन, और ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीजें एक दूसरे से, कि आपकी सोशो कंडीशंस आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से अच्छी नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तभी आपकी जो सोशल लाइफ है वो गंदी है, एंड वाइस वर्सा कि आपकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आप अच्छा खा नहीं पा रहे हैं, अच्छे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी जॉब नहीं लग पा रहे हैं, इन टर्न आप फिर अच्छा पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो इकोनॉमिकली आप फिर से वीक हो जाते हैं। तो दिस इज अ विशियस साइकिल। ठीक है, ये माइनॉरिटी ग्रुप्स में चलती है, ऐसा साचर कमेटी 2005 में उन्होंने बताया। उसके बाद है रीजनल ओवरलैप देखने को मिलता है कई बार कल्चर और पुवर्टी का। बिहार में और अगर आप ईस्टर्न यूपी में देखेंगे तो वहां पर ज्यादा पोवर्टी है इन कंपैरिजन टू, ये तो आपने सुना ही होगा कि वेस्टर्न यूपी इज मोर प्रोस्पेरस देन दी ईस्टर्न यूपी। देन यू हैव हिस्टोरिकल सोशल हायरार्की shaping present inequality, caste system legacy. Definitely, this is one of the harshest reality कि आपके जो अभी तो चलिए एफर्मेटिव एक्शंस हो चुके हैं, अभी आप कहते हैं कि रिजर्वेशन मिलती है, लेकिन आज उन बच्चों को जिनको रिजर्वेशन मिल रही है, बी इट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इन जॉब्स, लेकिन उनके जो पहली वाली जनरेशन्स थी उन्होंने इतना कुछ सहा है दैट दे आर नॉट एबल टू, सपोज लेट्स से दे आर नॉट एबल टू मैनेज एनी वेल्थ फॉर देयर फ्यूचर चिल्ड्रंस, फॉर देयर फ्यूचर जनरेशंस, whereas if you will see at the other castes, other castes who were having various privileges and advantages, they have collected wealth for their next generations. तो अभी उनके जो बच्चे हैं दे आर एट अ बेटर फुटिंग राइट नाउ। तो ऐसा नहीं है कि आज उनको रिजर्वेशन मिल रही है तो आज सब कुछ ठीक हो गया है, नहीं। ये जो कास्ट सिस्टम की जो लेगेसी है, ये जो हिस्टोरिकल हायरार्की है, ये आज भी जो है इनइक्वालिटी इट इज शेपिंग टुडेज इनइक्वालिटी एज वेल। ऑलराइट, नाउ दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो कोरिलेशन दिखा रहे थे। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं इतना भी कोरिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, माना कि कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स होते हैं, दे आर वेरी लेस इन नंबर, जैन्स हैं, पारसीज हैं, बट नो दे आर वेरी प्रोस्पेरस। ऐसा तो नहीं है अब कि वो कुछ अलग है, डिस्टिंक्ट है, दे आर लेस इन नंबर्स तो उनका ऐसे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर कम हो गया है, दे आर ऑल्सो माइनॉरिटी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनल डाइवर्सिटी विद इन ग्रुप्स, ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि अब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट जो है वो डिसएडवांटेज पे नहीं रह गई है। इनफैक्ट देर आर वेरियस सेक्शंस इन एवरी कास्ट जो कि रिच है, देर आर वेरियस सेक्शंस इन एवरी कास्ट जो कि डिसएडवांटेज हैं, जो कि
डिसएडवांटेजियस पोजीशंस पर हैं, जो कि पुअर है। तो इट इज मोर अबाउट इंडिविजुअल नाउ, इट इज मोर अबाउट क्लास नाउ एंड लेस अबाउट कास्ट, ऐसा इस पॉइंट में बोला गया है। इंटरनल डाइवर्सिटी विद इन ग्रुप्स, नॉट ऑल दलित्स और ट्राइबल्स आर पुअर। अर्बनाइजेशन रिड्यूसेस आइडेंटिटी बेस्ड कंस्ट्रेंट्स, मुंबई बेंगलुरु। अगेन वही चीज है कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे, यू विल रियलाइज वहां पर आइडेंटिटी आपकी इकोनॉमी की वजह से होती है। आप कौन से आप किस बिल्डिंग में रह रहे हैं, किस पॉश एरिया में आप रह रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि आपका रिलीजन क्या है या फिर आपकी कास्ट क्या है। सो अर्बनाइजेशन हैज रिड्यूस्ड, खत्म तो नहीं हुई है, बट येस इट हैज रिड्यूस्ड आइडेंटिटी बेस्ड कंस्ट्रेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. After that, you have one more point: economic mobility via education, reservation policies, emerging middle class across castes and communities. अब ऐसा नहीं रह गया है कि कास्ट बेस्ड है। आप देखेंगे कि ऐसे अब शहरों में आप जाएं तो प्लेसेस इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पर इस क्लास के कास्ट के रहेंगे, यहाँ पर इस कास्ट के नहीं। अब इस तरीके से हो गए हैं कि अगर ये महंगा रीजन है, हाईवे के पास है, सपोज करते हैं यहाँ पर फ्लैट्स हैं, देयर आर रिच विलास, तो यहाँ पर किसी भी कास्ट के लोग रहें, यहाँ पर क्लास अपर क्लास रहेगी, राइट। अब थोड़ा सा जो वीक एरिया है शहर का, वहां पर क्या रहेगी, मिडिल क्लास रहेगी। सो अब क्लास में बदलता जा रहा है, इमर्जिंग मिडिल क्लास अक्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटीज, ठीक है। So this was your previous year question which was asked, a bit tricky one. उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो आपके हमने 3 क्वेश्चंस देखे थे, वो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। दे वर pretty straight forward questions, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग। अब हमने देखा कि सिलेबस पॉइंटर में था सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स की हमको बात करनी है। सोसाइटी के अंदर कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है, जैसे कि आपका एक सोशल इंस्टीट्यूशन है मैरिज, हमको उसके बारे में पढ़ना है। एक सोशल इंस्टीट्यूशन है फैमिली, उसके बारे में पढ़ना है। आपका किनशिप भी होता है, पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछे गए हैं। किनशिप का मतलब क्या होता है? किन्स मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स, मतलब आपके जो रिश्तेदार होते हैं, उसका सिस्टम को बोलते हैं किनशिप। बट दिस इज नॉट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैरिज, फैमिली, उसके अलावा कास्ट हमको पढ़नी है और हमको ट्राइब के बारे में अब पढ़ना है। अब हमारा ये टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स रीड अबाउट मैरिज। अब देखिए, मैरिज की वैसे एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है, क्योंकि आजकल मैरिज वैसे भी बहुत डिफर कर रही है। अगर हम बोले कि मैरिज का मतलब है एक लड़का और लड़की का साथ में आ जाना, तो वो भी आजकल गलत है, बिकॉज वी हैव सीन द ट्रेंड ऑफ होमोसेक्सुअल मैरिजेस ऑल्सो। तो डेफिनेशन एज सच नहीं है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, देन यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज a thing that there is no universal definition of marriage which is applicable to all the societies. लेकिन स्टिल यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन के लिए आई हैव गिवन यू वन डेफिनेशन, जिसके अंदर थोड़े से फंक्शंस कवर हो जाते हैं मैरिज के, कि मैरिज क्यों हो रही है सोसाइटी में, ठीक है। तो मर्डॉक की एक डेफिनेशन है, वो बोलते हैं कि मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड यूनियन। मैरिज एक यूनियन है, ये तो पता होगा, यूनियन है, दो लोग साथ में आते हैं, एंड वो साथ में आना जो है वो सोशली अप्रूव्ड है, किसी को उस चीज से दिक्कत नहीं है, आपकी सोसाइटी में इनफैक्ट वो अप्रूव्ड है। इनफैक्ट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम you will realize that everyone around you wants you to get married, right? So socially approved union है। involving, अब इससे हो क्या रहा है? इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, जब दो लोग साथ में आते हैं तो फिर वो अपनी वो घर गृहस्थी चलाते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन करते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, एंड in future if they will have baby, they will be rearing that child, so child rearing. So this is the simple definition of marriage. Murdoch की definition है ये: marriage is a socially approved union involving economic cooperation, sexual relations and child bearing. इसके अंदर भी यही है मीनिंग ऑफ मैरिज। मैरिज इज नॉट मियरली अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने साइन करे और बस हो गया है, अब नहीं, उसके बहुत सारे काम हैं। अब सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट फंक्शंस एज अ कल्चरल प्रैक्टिस, रिलीजियस सेक्रामेंट भी है, बहुत सारी चीजें आपको एज अ जोड़ा करनी होती है, मतलब कि एज अ हस्बैंड वाइफ आपको बहुत सारी रिलीजियस चीजें भी करनी होती हैं। और रिलीजियस सेक्रामेंट की मतलब मैरिज इन हिंदू ट्रेडिशन इज प्योर,
देन हवन होता है ना, हवन कुंड के आगे आप मैरिज करते हैं, इफ आई थिंक इफ दैट इज द प्रॉपर वर्ड, राइट. देन यू हैव इकोनॉमिक अरेंजमेंट, किनशिप अलायंस, इंश्योरिंग सोशल कॉन्टिन्यूटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ फैमिली लाइफ. मैरिज की वजह से आपकी फैमिली आगे बढ़ती है, सोसाइटी एज अ होल भी आगे की तरफ कंटिन्यू करती है. दो व्यूज हैं हमारे. ट्रेडिशनल हिंदू व्यू के अकॉर्डिंग जो विवाह है, इट इज वन ऑफ द 16 संस्कार, इज रिगार्डेड एज सेक्रेड एंड लाइफ लॉन्ग बॉन्ड. आपको पता है हिंदुइज्म में देर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स. दिस इज द ट्रेडिशनल हिंदू व्यू. कंटेम्प्रेरी व्यू थोड़ा सा बदल रहा है अब, बिकॉज मैरिज इज इंक्रीजिंगली सीन एज अ पार्टनरशिप. अब इसको देखा जाता है एज अ पार्टनरशिप बिटवीन बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इंडिविजुअल चॉइस, इमोशनल कंपेनियनशिप, म्यूचुअल कंसेंट. ठीक है, अब हम लोग इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं. अब वो जो ट्रेडिशनल रोल्स होते थे एक हस्बैंड वाइफ के, वो थोड़े से डाइल्यूट हो रहे हैं. इंडिविजुअल चॉइस मैटर कर रही है. अब इमोशनली आप देखते हैं मेरा कौन कंपेनियन अच्छा बन सकता है, म्यूचुअल कंसेंट के साथ अब शादियां हो रही हैं. नॉट सो मच ऑफ रिलीजियस चीज. अब इसके अंदर रिलीजियस फैक्टर अभी नहीं है, अभी और बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं. अगेन दिस इज अ ब्रॉड टॉपिक जो हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं कि मैरिज किस तरीके से बदल रहा है आज की सोसाइटी में. ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज होती हैं. क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? सिंपल सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, कुछ इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लीगल. सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिवर्सैलिटी. यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सैलिटी वर्ड का मतलब है कि मैरिज आपको हर सोसाइटी में देखने को मिल जाएगी. हो सकता है फॉर्म बदल जाए, लेकिन मिलेगी आपको वो हर सोसाइटी में. तो यूनिवर्सल फिनोमिना है, फिनोमिना नहीं, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है इनफैक्ट. ये एक सोशल अप्रूवल होता है इसमें. रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, डेफिनेटली इससे सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट होता है, बिकॉज अ वुमेन, humans have year-round sexuality, so they cannot go on doing sexual promiscuity like our ancestors used to have. अब हमारे पास सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया है. लेजिटिमाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को जो है वो लेजिटिमेसी मिलती है. क्रिएशन ऑफ किनशिप टाइज, रिश्ते बनते हैं. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और आपके कुछ राइट्स होते हैं, आपको कुछ रोल प्ले करने पड़ते हैं, अब आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज. देन यू हैव इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज. डिविजन ऑफ लेबर. अब ट्रेडिशनल रोल्स अब थोड़े से डाइल्यूट हो रहे हैं, लेकिन डिविजन ऑफ लेबर किस तरीके से होता था कि जो हस्बैंड है ही इज गोइंग टू फाइनेंस इकोनॉमिकली, ही इज गोइंग टू बी द प्रोवाइडर, वाइफ इज गोइंग टू डू द अनपेड डोमेस्टिक वर्क. इनफैक्ट अभी भी आप कितना भी चेंज करिए, स्टिल द बर्डन ऑफ अनपेड वर्क, द बर्डन ऑफ केयर lies on the woman itself, wife. ठीक है, then you have pooling of resources, साथ में मिलजुल के अपने resources को यूज करते हैं. प्रॉपर्टी ट्रांसमिट होता है, मैरिज से ही तो होगा. मैरिज के बाद फिर आपके किड्स होंगे, बच्चे होंगे, चिल्ड्रन. प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन फैमिली लाइन के थ्रू, और सोशल सिक्योरिटी भी एक रहती है. देन यू हैव कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. रिचुअल सिग्निफिकेंस होता है इसका. आपको पता ही है कि मैरिज इन इटसेल्फ हिंदू ट्रेडिशन में भी या फिर हर ट्रेडिशन में इनफैक्ट जो है ये रिचुअल सिग्निफिकेंस है मैरिज का. प्रेजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, जिससे ट्रेडिशंस बचे रहते हैं. कम्युनिटी आइडेंटिटी. एंडोगेमी एक्सोगेमी की नॉर्म्स है कि आपको एंडोगेमी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दीज आर द मैरिज रूल्स. एंडोगेमी का मतलब क्या है कि आपको अपने ग्रुप के अंदर ही शादी करनी है. तो कास्ट एंडोगेमी का मतलब क्या है? अपने ग्रुप के अंदर. ग्रुप यहाँ पर क्या है? कास्ट. तो अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करनी है. लेकिन एक्सोगेमी का मतलब क्या है? अपने ग्रुप से बाहर शादी करनी है. इसका मतलब क्या है? जैसे कि गोत्रा एक्सोगेमी, अपने गोत्र से बाहर शादी करनी है. लेकिन कास्ट एंडोगेमी, अपनी कास्ट में शादी करनी है. एंडो अंदर, कास्ट के अंदर, लेकिन एक्सो गोत्र के बाहर. तो ये सब रूल्स हैं कुछ. तो कल्चर के रूल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे एक मैरिज में. उसके बाद आपकी है लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज स्टेट रिकॉग्निशन. आपको कोर्ट में जो है मैरिज को रजिस्टर करवाना पड़ता है. मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स हैं आपको पता है 21, 18. देन यू हैव इनहेरिटेंस राइट्स, डाइवोर्स प्रोविजन. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज. आप इसको आप ब्रॉडली याद रखेंगे ना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल चीज है. यू विल बी एबल टू आंसर इट.
मतलब इसमें ये रटने मत बैठ जाना इसको। अब इसको बस सोचो, खुद से सोचिए एक बार मैरिज के बारे में। इन 4 थीम्स को याद रख लो: सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पाउसेस, कि आपके कितने स्पाउसेस हैं। मोनोगेमी मतलब एक फीमेल मैरिड टू ओनली वन मेल, वन वन। देन यू हैव पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी का मतलब क्या है? वन मैन, वन मेल मैरिड टू मैनी वुमेन, मोर देन वन वुमेन। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है? वन वुमेन मैरिड टू वुमेन मैरिड टू मोर देन वन मैन। ठीक है? So these are the different types of marriages based on the number of spouses. Then you have आजकल, अच्छा आजकल एक और आया था ना, सोलोगैमी, खुद से शादी करना। ये लिख सकते हैं आप चेंजिंग ट्रेंड्स में। देन यू हैव बेस्ड ऑन मेट सिलेक्शन, कि आपको अपना जो मेट है वो किस तरीके से सिलेक्ट करना है। फिर से वही बात, एंडोगेमी जैसे कि कास्ट एंडोगेमी, कास्ट के अंदर शादी करनी है। एक्सोगेमी, गोत्र एक्सोगेमी, गोत्र के बाहर शादी करनी है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिलेक्शन, अरेंज मैरिज है, लव है, ये सब नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा भी ट्राइबल सोसाइटी से मोड्स ऑफ सिलेक्शन बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बिहार में एक सोसाइटी में जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसके अंदर होता है कि अ, जो मेला है, फेयर जो होते हैं, मेले होते हैं ना गांव वगैरह में, विलेज फेयर्स, वहां पर क्या होता है, वहां से आप लड़की को भगा कर ले जाते हैं, एलोपमेंट। इस टाइप की मैरिजेस भी होती हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये बहुत टाइप है, नॉट सो इम्पोर्टेंट ऑनेस्टली दिस एरिया, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो मेजरली आपके चेंजिंग ट्रेंड्स पे आते हैं मैरिज में क्वेश्चंस, नॉट ऑन दिस। दिस इज वेरी स्टैटिक, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड दिस सो एज टू गिव अ वेरी होलिस्टिक आइडिया ऑफ द कंटेंट, ताकि आपको ये टॉपिक कुछ भी मिस ना हो। तो अब तक हमने पढ़ लिया है मैरिज की डेफिनेशन, हमने पढ़ी थी कि क्या क्या होता है मैरिज के अंदर। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है मैरिज की, टाइप्स ऑफ मैरिज हैं। अब चेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग नाउ। चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं? पहले तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं आपके। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आ रहे हैं आपकी फैमिली में? अर्बनाइजेशन वगैरह हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियराइजेशन हो रही है। वैसे तो फैमिली में आ सकता है आपका वर्ड, फैमिली जो है वो आपकी न्यूक्लियर फैमिली बन रही है अब। डिक्लाइन ऑफ फैमिली कंट्रोल, फैमिली का जो कंट्रोल होता था मैरिड लाइफ पे पहले एक कपल की, अब वो कम हो रहा है इसकी वजह से, न्यूक्लियराइजेशन की वजह से। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब क्या हो गया कि वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से दूर है, तो फिर डिक्लाइन ऑफ फैमिली कंट्रोल, फैमिली का कंट्रोल जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। देन यू हैव चेंजिंग पार्टनर सिलेक्शन। अब आपका जो पार्टनर सिलेक्शन है, आपको ज्यादा ऑटोनॉमी है। अब यू कैन सी देयर आर राइज ऑफ लव मैरिजेस, यू कैन सी कि अब इंटरकास्ट मैरिजेस भी ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक चेंजिंग पैटर्न है। सबसे पहले तो था, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, न्यूक्लियराइजेशन हो रही है जिसकी वजह से फैमिली कंट्रोल। अब पार्टनर सिलेक्शन में आपकी ज्यादा ऑटोनॉमी है, लव मैरिज, मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। डिलेड मैरिजेस, नाउ मैरिजेस अब लेट हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, करियर, इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ठीक है, पहले लड़कियों की तो बहुत जल्दी हो जाती थी, लेकिन अब समय बदल रहा है तो लड़कियों को पढ़ने दे रहे हैं, करियर बनाने दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैरिज डिले हो रही है। कंपेनियनेट मैरिज हो रही है अब। नाउ द मैरिजेस आर मोस्ट बेस्ड ऑन लव, कंपैशन। पहले ये आइडिया नहीं होता था। पहले अगर आप देखेंगे तो प्रोक्रिएशन एक आइडिया था कि हाँ, फैमिली आगे बढ़ानी है तो मैरिज तो होनी ही है, बिकॉज फैमिली बनानी है। पर नाउ ऐसा नहीं है, अब हम लोग कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, राइट? अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, कंपैटिबिलिटी, ये सब चीजें चाहिए हैं। अब इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट्स, क्यों? क्योंकि नॉट बिकॉज कि पहले पीपल वर वेरी हैप्पी और समथिंग लाइक दैट, बट बिकॉज अब स्टिग्मा हैज बीन रिड्यूस्ड, असर्शन ऑफ राइट्स। देखो सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट कितना कितना, अगर आप देखेंगे तो कितना इजी है इन द टर्म्स दैट आप जो भी पढ़ रहे हैं यू कैन ऑब्जर्व इट अराउंड योर सेल्फ।
right? So it is very easy. All you have to do is your keep your mind open. ब्रेनस्टॉर्म करो जितना कर सकते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है? तो इंक्रीजिंग डिवोर्स रेट्स बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड स्टिग्मा, असर्शन ऑफ राइट्स, वुमेन्स एजेंसी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिसीजन मेकिंग। अब वुमेन का ज्यादा रोल है decision making may be in the marriage, in the institution of marriage. So these were the changes in modern India. Structural changes, changing patterns, partner selection देख लिया हमने, delayed marriage, marriage हो ही लेट रही है, हो भी रही है तो किस तरह से हो रही है आपकी, आप खुद से ढूंढ सकते हैं, लव मैरिज हो रही हैं, फिर आपने देखा कि ढूंढ भी आप कैसे रहे हैं, कंपेनियनेट मैरिज हो रही है, अगर मैरिज नहीं चल पा रही है तो डाइवोर्स भी हो जा रहा है, इंक्रीजिंग डाइवोर्स। तो आप एक स्टोरी की तरह इसको बनाएंगे और आप लिख सकते हैं चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया इन द मैरिज। और क्या लिखेंगे, बाकी चीजें क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं आपके, देखिए इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, इंटरफेथ मैरिज हो रही है, डिजिटलाइजेशन ऑफ मैरिज हो रहा है। अच्छा, डू यू नो अबाउट दिस? कुछ जो एनआरआईज रहते हैं बाहर, आपने देखे हैं कुछ ऐसे वीडियोस, एनआरआईज रहते हैं बाहर, तो उनकी शादी अगर करवानी है तो वीडियो कॉल पे उनका रोका करवा दे रहे हैं। दिस इज डिजिटलाइजेशन ऑफ मैरिज का एक एग्जाम्पल है ये। लिव इन रिलेशनशिप्स, नाउ सी दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न, नॉट लाइक एक सोशल, अभी सोशल अप्रूवल में इसको टाइम है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था जब हम मैरिज की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि सोशली अप्रूव्ड है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप अभी सोशल अप्रूवल में, अभी इसको थोड़ा टाइम है इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया। एक्सेप्टेंस ऑफ सिंगलहुड, अब सिंगल रहना जरूरी नहीं है कि आपको शादी करनी ही करनी है। एंड अ ग्रोइंग डिस्कोर्स अराउंड कंसेंट एंड individual autonomy. So these are the emerging trends in marriage. Again, there are issues and challenges are always associated with any particular trend or institution per se. Child marriage, मैरिज जो है, मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है हमारी सोसाइटी में, उसमें चाइल्ड मैरिज एक बहुत गलत चीज है। डाउरी जो है, ऑन द क्राइम्स हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप डिबेट है। Then you have persistence of अभी भी caste endogamy है. This is the paradox of our society. अभी भी है ये caste endogamy. Now, next is constitutional legal dimensions. हमेशा मैंने आपको फिर से बोला था कि सोसाइटी के आप हर टॉपिक में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेजर आर्टिकल्स देखिए। आर्टिकल सबसे पहले तो आर्टिकल 21, दिस इज द foremost कि you have the right to choose your partner, right to marry, live a life of dignity. This is article 21 के अंदर। आर्टिकल 21 का स्कोप तो इतना ज्यादा है कि you can use it in n number of things. Now you have major laws. Special Marriage Act 1954, Prohibition of Child Marriage Act 2006, Dowry Prohibition Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. आप इनको use कर सकते हैं in questions related to marriage. Then you have conclusion. Marriage in India remains a resilient institution. अभी भी है, ये जाएगा नहीं, but its meaning एंड फॉर्म आर इवॉल्विंग। इसका मीनिंग बदल रहा है। मैरिज का मीनिंग पहले हो सकता था कि प्रोक्रिएशन पे फोकस था, कि यू हैव टू बियर द लेगेसी ऑफ अ फैमिली, हालांकि अभी है, बट यू सी द मीनिंग इज चेंजिंग, कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नाउ द सेंट्रल पार्ट इज मोर कंपेनियनशिप बेस्ड, दैट यू द पार्टनर्स आर सर्चिंग ईच अदर फॉर इमोशनल कंपेटेबिलिटी, फॉर इमोशनल सपोर्ट, राइट? फॉर्म्स आर इवॉल्विंग, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप्स हैं आपके। अब हम देखते हैं कास्ट और मैरिज का क्या रिलेशन है। कास्ट एंडोगेमी, एंडोगेमी मैंने बताया आपको, इज द नॉर्म ऑफ मैरिंग विद इन वंस ओन कास्ट। आपको अपनी कास्ट में शादी करनी है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी कास्ट बाउंड्रीज प्रिजर्व रहती हैं, स्टेटस आपका जो है प्रिजर्व रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा था कि कास्ट इज अ हायरार्की बेस्ड सिस्टम, तो उसके अंदर आपकी अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, देन यू वुड नॉट वांट टू मैरी द लोअर कास्ट, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, टू प्रिजर्व योर कास्ट आइडेंटिटी। तो इसकी वजह से ये रूल है आपका कास्ट एंडोगेमी का, टू मैरी विद इन वंस ओन कास्ट। वाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? इससे कास्ट बाउंड्रीज आपकी प्रिजर्व रहती है, आपका स्टेटस मेंटेन रहता है, आपका सोशल हायरार्की जो है वो मेंटेन रहती है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अब कास्ट एंडोगेमी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप सोचिए, इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, उसके बाद भी ये जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं, ये जो इतने रूढ़िवादी सोच है कास्ट एंडोगेमी की, ये आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए आज इंडियन सोसाइटी में। सिग्निफिकेंस का मतलब यही है यहाँ पे।
वाई स्टिल प्रेवलेंट? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड सोशल बैकलैश। माना कि हम इतना पढ़ लेते हैं लेकिन स्टिल स्पेशली जो हमारी ओल्डर जनरेशन है अभी भी उनको मनाना इट्स अ बिट डिफिकल्ट। सो यू ऑलवेज हैव फैमिली कम्युनिटी प्रेशर, ऑनर क्राइम्स इतने ज्यादा हैं कुछ फैमिलीज में, कुछ विलेजेस में। तो नॉट जस्ट मनाना, अगर आप उनके अगेंस्ट गए देन दे माइट किल यू। सोशल बॉयकॉट कर देते हैं आपका, खाप पंचायत वगैरह, ऑपोजिशन फ्रॉम खाप पंचायत। इसीलिए कास्ट एंडोगेमी आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने देख लिया कास्ट एंडोगेमी होती क्या है, ये क्यों हो रही है, अपनी कास्ट बाउंड्रीज को प्रिजर्व करने के लिए, स्टेटस को प्रिजर्व करने के लिए, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से फेक स्टेटस को प्रिजर्व करने के लिए। सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि आज भी एग्जिस्ट कर रही है डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन, और ये आज भी रेलिवेंट क्यों है, सॉरी प्रेवलेंट क्यों है ये आज भी, बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी, सोशल बॉयकॉट, खाप पंचायत से ऑपोजिशन, ऑनर क्राइम्स। नाउ इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इंटरकास्ट मैरिज आजकल हो रही है, ये तो आप देख रहे होंगे अपने आसपास, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, माइग्रेशन, वर्क प्लेस इंटरेक्शन। आप अब वर्क प्लेस में, आप जब एक ऑफिस में काम करते हैं देन यू आर लेस अवेयर ऑफ ईच अदर्स कास्ट आइडेंटिटी बट मोर अवेयर ऑफ ईच अदर्स इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, more aware of how much the person is economically earning, how is your compatibility। इसीलिए लव मैरिजेस बढ़ रही हैं। लव मैरिजेस में इंटर जो अपनी लव मैरिजेस में कास्ट जो है इट डजंट प्ले मच ग्रेटर रोल देन इट इज प्लेइंग इन दी अरेंज मैरिजेस, जिसके अंदर कास्ट एंडोगेमी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो आपने देख लिया इंटरकास्ट मैरिजेस का डिटर्मिनेंट्स क्या है कि धीरे धीरे बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड वर्क प्लेस इंटरेक्शन। इसके बाद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है, कास्ट इंटरकास्ट मैरिजेस के अच्छे पॉइंट्स क्या है कि ये क्यों होनी चाहिए है। डेफिनेटली बी आर अम्बेडकर जो थे वो तो इसके बहुत ज्यादा सपोर्ट में थे। सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, इसकी वजह से सोसाइटी आपकी इंटीग्रेट हो सकती है, कास्ट बैरियर्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 14, हर कोई इक्वल है, कोई कास्ट छोटी कोई कास्ट बड़ी नहीं है, किसी कास्ट से मैरी करने से आपका स्टेटस कम नहीं हो जाएगा। अगेंस्ट आर्टिकल 14 है ये। आर्टिकल 15 अगेन वही, आर्टिकल 21 यू हैव अ राइट टू चॉइस, यू हैव अ राइट टू चूज योर ओन पार्टनर, राइट टू डिग्निटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ब्रदरहुड है। तो ये कास्ट जैसी चीजें आप क्यों ला रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, राइट? तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन करना है इंटरकास्ट मैरिजेस के क्वेश्चन में। जुडिशरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ केस जो है वो इससे रिलेटेड केसेस हैं। राइट टू मैरी बाय चॉइस इन लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देन कर्बिंग ऑनर किलिंग, शक्ति वाहिनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन। आप इन दो को एज अ वैल्यू एडेड पॉइंट लिखेंगे आंसर में अपने, you will get a brownie point in your answer, in your score. Then, state initiative, Dr. B.R. Ambedkar scheme for social integration through intercaste marriage. गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ये चला रही है। तो ये था इंटरकास्ट मैरिज के बारे में ब्रॉड चीजें। थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट एंडोगेमी देखिए, बी आर अम्बेडकर बोलते हैं एंडोगेमी इज द एसेंस ऑफ कास्ट। बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि कास्ट जो है वो एग्जिस्ट ही इसलिए कर पा रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमी। प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमी अगेन बोलिए मेरे साथ, बोलिए व्हाट इज एंडोगेमी, व्हाट इज कास्ट एंडोगेमी? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन योर ओन कास्ट सिस्टम। वाई, क्यों करते हैं लोग ऐसा? टू प्रिजर्व देयर ओन स्टेटस, टू प्रिजर्व देयर कास्ट बाउंड्रीज, टू प्रिजर्व द सोशल हायरार्की। तो ये सब करने के लिए जो है एंडोगेमी कर रहे हैं लोग, ऐसा बी आर अम्बेडकर जी ने समझ लिया। उन्होंने बोला कि एंडोगेमी इज द एसेंस ऑफ कास्ट। देन यू हैव एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास एक थिंकर है एंथ्रोपोलॉजी में। मैरिज रिमेन्स अ की इंस्टीट्यूशन थ्रू विच कास्ट रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ अक्रॉस जनरेशंस। इन्होंने भी ऐसा ही बोला कि अक्रॉस जनरेशंस अगर हम बात करें, आज भी ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए इतने साल हो गए हैं फिर भी जो है कास्ट इज स्टिल देयर, कास्ट एंडोगेमी इज स्टिल देयर, बिकॉज मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पेरेंट्स हमको नहीं करने देंगे सपोज कास्टिज्म, घुसा देंगे इतना ज्यादा कि आपको किसी और कास्ट की लड़का या लड़की नहीं लानी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर आप कल्चरल एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी आपके अंदर। अब आपके अंदर ही अगर कल्चरल एक्सेप्टेंस नहीं आए तो फिर आप अपने बच्चों को अंदर नहीं देंगे। तो इसकी वजह से, इसी वजह से सिर्फ जो है
across generation, caste is able to reproduce itself because of the marriage. अब देखिए, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पहले तो कि इंटरकास्ट मैरिजेस तो हैं वो फिर भी हो रही हैं हमारी सोसाइटी में आज, लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिजेस तो इतनी प्रेवलेंट फिर भी बिल्कुल ही नहीं है, मतलब वेरी लेस इन कंपैरिजन टू इंटरकास्ट। तो पहले आपको इंटरकास्ट के बारे में थोड़ा लिख देना है उस क्वेश्चन में, लेकिन फिर आपको बताना है कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस क्यों प्रेवलेंट नहीं है आज भी, बिकॉज रिलीजियस एंडोगेमी। अब आपको इस वर्ड का मतलब पता चल चुका है कि एंडोगेमी का मतलब होता है कि टू मैरी विद इन वंस ओन ग्रुप। अब ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना, अब ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कास्ट एंडोगेमी लिख रहे थे तो दैट मीन्स यू वर सपोज टू मैरी इनसाइड योर ओन कास्ट। अब यहाँ पर हम रिलीजियस एंडोगेमी लिख रहे हैं, इसका मतलब यू आर सपोज टू मैरी विद इन योर ओन रिलीजन। तो रिलीजन एंडोगेमी की वजह से जो है people are preferring to preserve their own faith, rituals, community identity. That is why they are not marrying outside their religion. Then you have again wahi same cheez hai, family and community pressure, because marriage is not just an alliance between individuals. It is viewed as an alliance between families. बोलते हैं हमेशा कि शादी दो लोगों की नहीं होती है, शादी दो परिवारों की होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर होता है टू नॉट मैरी आउटसाइड रिलीजन, क्योंकि फिर उनको अपने फेथ, रिचुअल्स, कम्युनिटी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस एंडोगेमी। ऑनर अगेन, ऑनर एंड सोशल सैंक्शंस हो जाते हैं, सोशल बॉयकॉट आपको कर देंगे। लव जिहाद का डिस्कोर्स, ये तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं ना, ये कितना कैची वर्ड है, आप इस वर्ड को यूज करेंगे तो एग्जामिनर का इस वर्ड पे ध्यान जाएगा ही जाएगा, ही इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। कंटेम्प्रेरी नैरेटिव्स एंड एंटी कन्वर्जन डिबेट्स, इनकी वजह से सस्पिशन बढ़ चुका है अराउंड इंटरफेथ यूनियन। अब आपको नहीं पता है कि कौन सी कम्युनिटी ट्रिगर हो जाए आपकी शादी से, तो लव जिहाद के जो डिबेट्स चलती हैं, नैरेटिव्स चलते हैं, फेक नैरेटिव्स चलते हैं, इनकी वजह से भी बहुत दिक्कत आ रही है आपकी इंटर रिलीजियस मैरिजेस की एक्सेप्टेंस में। लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, यस दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। यू माइट फाइंड डिफरेंट कास्ट अराउंड यू, लेकिन कम्युनिटी वाइज अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल और सोशल सेग्रीगेशन उससे भी ज्यादा है, कास्ट सेग्रीगेशन से भी ज्यादा है आपका रिलीजन वाइज सेग्रीगेशन। तो आपकी सोशल इंटरेक्शन ही बहुत लिमिट हो जाती है। देन यू हैव लीगल एंड प्रोसीजरल हर्डल्स। द स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 का, डिस्पाइट इनेबलिंग सच मैरिजेस, सोशल स्क्रूटिनी, इट इन्वॉल्व सोशल स्क्रूटिनी। जब आपको लीगल आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो जब आप लीगल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप स्क्रूटिनी में आ जाते हैं और ज्यादा। पीपल गेट टू नो अबाउट योर मैरिज कि आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स देखिए हमारा, दिस इज वेरी सैड कि while article 14, this is such a good line, this is such a beautiful line, you note it. While Article 14, 15, 21 upheld equality and choice, social acceptance remains limited. कि even though हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज्यादा आर्टिकल्स हैं which are upholding equality, choice, जिसकी वजह से आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए, इंटर रिलीजन मैरिज करनी चाहिए, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो आज भी क्या है, इट रिमेन्स लिमिटेड। सो पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, rising individual choice and intercaste marriage coexist with the enduring reality of caste endogamy and relatively lower incidence of interreligious marriage. This is the paradox of modern India कि yes, मॉडर्न इंडिया में इंडिविजुअल चॉइस तो बढ़ रही है, आपकी खुद की चॉइस मैटर करती है, अभी इंटरकास्ट मैरिजेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो है अगर हम बात करें देन कास्ट एंडोगैमी is the enduring reality of the Indian society and especially inter-religious marriage, वो तो बहुत ही कम हो रही है आज भी, आज के ज़माने में भी। So this was related to marriage. हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना आपका वो यही है, यहाँ से ये वाली चीज़ कि मैरिज किस तरह से चेंज हो रही है, कास्ट के साथ मैरिज का क्या रिलेशन है, इंटर कास्ट मैरिजेस क्यों नहीं हो रही हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेस क्यों नहीं हो रही हैं। और उससे पहले हमने इट वॉज वेरी स्टैटिक बेस, इट वॉज वेरी बेसिक। मैरिज की एक डेफिनेशन है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, आपको साथ रहना है, आपको इकोनॉमिकली डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करनी है एक दूसरे की, रिचुअल सिग्निफिकेंसेस होते हैं कुछ, आपकी फैमिली आगे बढ़ती है, चाइल्ड रियरिंग
आपको करना है यूजिंग दी मैरिज, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर होता है ह्यूमंस में, एंड सम लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स इट. Next social institutions that we have to study is family. Family structures and relationship. And इसके अंदर भी वही चीज important होगी, which is emerging trends of emerging trends या फिर change in family. स्पेशली आपने देखा होगा कि अब क्या है, जॉइंट फैमिली से चेंज होकर हमारी न्यूक्लियर फैमिली बन रही है. दिस वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.